हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। जैसे आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे पॉलीसैकेराइड्स और टाइप्स ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन and today we are going to discuss about the structural polysaccharides. Structural polysaccharides are one of the type of the polysaccharides on the basis of their function. And the structural polysaccharides, as we have already discussed in the previous lecture, ये important constituents होते हैं, important constituents of the framework of the cell walls in plants, and they are also the important components of the exoskeleton in certain animals. Dear candidates, if you are new to my YouTube channel, do subscribe and press the bell icon so that you will get all the notifications of my videos. Coming to the topic, that the structural polysaccharides, as I already mentioned, that these structural polysaccharides are the important constituents of the framework of the cell wall in case of the plants, and they are also the important components of the exoskeleton of certain animals. ये insoluble होते हैं वाटर में, they are insoluble in water, insoluble in water, they are insoluble in water. Due to this insolubility in the water, these structural polysaccharides help the organisms to retain their form, इनकी फॉर्म को रिटेन करने में मदद कर देते हैं, और they also strengthen their structure. And the most important two structural polysaccharides are, that is the cellulose and chitin. हम पहले सेल्यूलोस को ले लेते हैं। ये जो सेल्यूलोस होता है, सेल्यूलोस, दिस सेल्यूलोस इज a fibrous polysaccharide with high tensile strength. So it is fibrous polysaccharide with high tensile strength. This cellulose is an important constituent of the cell wall in plants. The cellulose is an important constituent of cell walls in plants. No doubt it is mainly of having the vegetable origin. इस सेल्यूलोस का mainly vegetable origin होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स में ये पाया जाता है जिन एनिमल्स को हम यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं या ट्यूनिकेट्स कहते हैं या एसिडेनस कहते हैं। इन ट्यूनिकेट्स के बाहर एक स्टिफ कवरिंग होती है जिसको हम ट्यूनिक कहते हैं। वो ट्यूनिक बनी हुई होती है सेल्यूलोस सबस्टेंस से, और वहाँ पे इसको हम कहते हैं ट्यूनिसिन और एनिमल सेल्यूलोस। सो इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्ट, इट इज़ present also in tunic of eukaryotes, or we can say the tunicates or acidans. और यहाँ पे इसको हम कहते हैं बेटा, यहाँ पे हम इसको कहते हैं एनिमल सेल्यूलोस और ट्यूनिसिन। ये जो सेल्यूलोस है, ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सबस्टेंस नेचर में पाया जाता है या बायोस्फीयर में पाया जाता है। इट इज़ द मोस्ट abundant organic substance in biosphere, and it constitutes some around 50% of the carbon in plants. प्लांट्स में 50% ऑफ द कार्बन जो होता है वो होता है सेल्यूलोस की वजह से। सो
constitutes 50% of the carbon in plants. If we will take the नेचुरल मटेरियल्स, अमंग द नेचुरल मटेरियल्स कॉटन फाइबर्स में सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है अप टू 95%. अमंग नेचुरल मटेरियल्स cotton fibers contain largest amount of cellulose, and how much? Up to 95%. In case of wood contains 25 to 50% of cellulose. Now this is just an introduction about the cellulose. Now we will go through the structure of this cellulose. The structure of cellulose, mainly the cellulose is a linear, unbranched homopolymer or homopolysaccharide of beta-D glucose units. Up to 15,000 beta-D glucose molecules are joined with each other or linked with each other by means of a glycosidic bond. That glycosidic bond is 1,4 glycosidic bond. इस सेलुलोज जो होता है, ये सेलुलोज बना हुआ होता है, इट इज अ लीनियर अनब्रांचड पॉलीमर ऑफ, किनका पॉलीमर? बीटा-डी ग्लूकोज. एंड ये जो बीटा-डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, बीटा-डी ग्लूकोज यूनिट्स जो है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं बाय मीन्स ऑफ बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लिंकेज. नाउ यहां पे जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं. हाउ मेनी glucose units are present in the cellulose? That is up to 15,000 glucose molecules. Which glucose molecules? Beta-D glucose molecules are present in cellulose. Now जैसे आपको मैंने अभी बताया कि ये जो सेलुलोस है ये बीटा-डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है. तो देखिए आप, अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, इफ दिस इज द आई विल ट्राई टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा-डी ग्लूकोज. बीटा में यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन पे OH ऊपर होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, एंड यहाँ पे OH, यहाँ पे H, here H and here CH2OH. This is the beta-D glucose molecule, beta-D glucose. एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश करेंगे हम. इन द सेम वे वी विल ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द बीटा-डी ग्लूकोज. अगेन यू विल सी हियर दैट हियर OH, फर्स्ट कार्बन पे H, सेकंड कार्बन पे OH नीचे, H ऊपर, एंड थर्ड कार्बन पे OH ऊपर एंड H नीचे, एंड फोर्थ कार्बन पे OH नीचे, H ऊपर, एंड फिफ्थ कार्बन पे ऊपर CH2OH एंड नीचे H. जैसे आपको मैंने बताया, लेट्स ट्राई टू नंबरिंग द कार्बन. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6. हियर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो बॉन्ड जो बनता है वो पहले जो इनिशियल का ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उसके फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नेक्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के
फोर्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ये OH और ये OH को हम रिप्लेस करेंगे या रिमूव करेंगे। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को हमें रिलीज करना है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन गया, दिस इज द β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दिस इज सिंपली नाउ। अभी हमने बनाया है डाइसैकेराइड को, तो हम सभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे नहीं शो कर सकते। तो इस फर्स्ट कार्बन के दिस सेकंड ग्लूकोज के इस फर्स्ट कार्बन के साथ नेक्स्ट ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा एंड दिस चैन विल इंक्रीज इन द सेम वे। यहाँ पे इस फोर्थ के साथ किसी और नेक्स्ट प्रीवियस कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे शो करेंगे, वी विल शो दिस बाय मीन्स ऑफ दिस एंड यहाँ पे एक ब्रैकेट डालेंगे। यहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे OH को, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लिखेंगे। वी विल राइट डाउन हियर द N। सो N इज mainly now N is the number of beta D glucose molecules and it is N is up to 15,000। और यहाँ पे आपने देखा जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड बनेगा, जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जितने भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे एंड दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल्यूलोज। या इस सेल्यूलोज में मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया कि इट्स अ लीनियर अनब्रांचड। कोई भी ब्रांच नहीं होती है, कोई भी यहाँ से इस लीनियर चेन में कोई ब्रांच नहीं अराइज होती है। अब यहाँ पे दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्यूलोज। नाउ दिस सेल्यूलोज की जो आपने देखा ये चैन एक होगी, चैनज में पाया जाता है। इफ दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज द सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, थर्ड, फोर्थ, so on and so on। ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स डू नॉट ओकर सिंगल, ये सिंगल ही नहीं पाए जाते, दे ओकर इन द बंडल्स एंड जो बंडल्स में जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एंटीपैरेलल इन नेचर। सो इफ दिस इज द वन सेल्यूलोज चेन, द सेकंड वन आई विल शो दिस। यहाँ पे अगर इस साइड में अगर फोर्थ फ्री है तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन फ्री होगा। तो इसमें नेक्स्ट चेन में फर्स्ट कार्बन फ्री होगा और फोर्थ कार्बन इस साइड में फ्री होगा। तो इसी तरह एक बंडल्स ऑफ दी सेल्यूलोज चेन्स आर प्रेजेंट एंड अराउंड सो सेल्यूलोज occurs in bundles around, and these bundles they always occur anti-parallel and around some 20,000 cellulose chains form microfibril। जब 20,000 अप टू 20,000 सेल्यूलोज चेन जब एक दूसरे के साथ इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स में एग्जिस्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं बेटा माइक्रोफाइब्रिल। एंड दीज माइक्रोफाइब्रिल्स आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है, व्हाट इज द बॉन्ड विच प्रोवाइड्स और विच हेल्ड दीज चेन्स टुगेदर। ये इन चेन्स को एक दूसरे के साथ हेल्ड कर देता है एक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड सो वी कैन राइट डाउन हियर द चेन्स of cellulose are held by hydrogen bonds। अब
this was about the structure of the cellulose. Now अगर हम इसकी डाइजेशन की बात करेंगे, वर्टिब्रेट्स में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता है जो इस सेल्यूलोज के β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करे। लेकिन अगर हम हर्बीवर्स की बात करें, हर्बीवर्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सीरीज ऑफ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जिनको कलेक्टिवली में हम सेल्यूलेस कहते हैं। और सो वी कैन से वर्टिब्रेट्स आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोस while as the herbivores are able to digest the cellulose because their digestive system contains a symbiotic microorganisms which secrete a series of enzymes collectively known as the cellulase. So no digestion by vertebrates, कोई भी vertebrates इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है because they don't have no digestion, because no enzyme in digestive system for digestion of cellulose. लेकिन अगर हमने बात की हर्बीवर्स में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, क्या करते हैं? सिक्रीट सीरीज ऑफ एंजाइम्स जिनको कलेक्टिवली में हम कहते हैं सेल्यूलेस. सो दिस सेल्यूलेस is an enzyme secreted by the symbiotic microorganisms and which help in the digestion of this cellulose. And अगर हम अब बात करेंगे कि क्या इस सेल्यूलोस की डाइजेशन स्लो होती है या क्विक होती है, देखिए mainly this cellulose is the digestion of the cellulose is more complex and more time consuming as compared to the digestion of the meat by the vertebrates or by the carnivores. And this was about the introduction and the structure of this cellulose. Now the next structural polysaccharide is the chitin. This chitin is the second abundant or second largest organic substance in the nature. Second abundant organic substance in the nature. और जो ये काइटिन होता है, इट इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स. इट इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स. कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, ये इनवर्टिब्रेट्स के एक्सोस्केलेटन में एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ सर्टेन कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स सच एज, अगर हम बात करेंगे सच एज क्रस्टेशियंस के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है काइटिन. इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स. तो हम कह सकते हैं कि जो ये काइटिन है, काइटिन पहले फर्स्ट abundant organic substance is the cellulose and the second abundant organic substance in the nature or in the biosphere is the chitin, and it is a principal component of the exoskeleton of certain invertebrates such as crustaceans, insects or spiders में. And it is also an important component of
कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है काइटिन, और यहां पे इसको हम कहते हैं फंगल सेल वॉल में, इसको यहां पे हम कहते हैं फंगल सेल्यूलोस। तो व्हाट इज द फंगल सेल्यूलोस? फंगल सेल्यूलोस इज नथिंग, इट इज द काइटिन। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड हैं जो बना हुआ होता है बीटा डी ग्लूकोज के डिराइवेटिव से, जिसको हम कहते हैं एन स्टाइल ग्लूकोज एमाइन। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ, और इट इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ द एन स्टाइल ग्लूकोज एमाइन। एन स्टाइल ग्लूकोज एमाइन एक डिराइवेटिव है बीटा डी ग्लूकोज एमाइन का। चलिए ड्रा कर देते हैं हम अब स्ट्रक्चर ऑफ बीटा दिस एन स्टाइल ग्लूकोज एमाइन की। जिस तरह आपने बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा वैसा ही यहाँ पे भी है, लेकिन सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, वहाँ पे आपको चेंज हुई होती है और ये बन जाता है एन स्टाइल ग्लूकोज एमाइन। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे ग्लूकोज में OH नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे एन स्टाइल ग्लूकोज में NH+COCH3 बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, and here CH2OH and H. Now we will try to draw another structure of the another molecule of the N-style glucosamine. What is this? It is N-style glucosamine. नाउ दूसरा एक एन स्टाइल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो यहाँ पे अगेन हियर इट विल बी OH, H, हियर विल बी H, हियर विल बी NH, COOCH3, here OH, here H, here OH, here H, here CH2OH, and here H. This is the carbon number first, second, third, fourth, fifth, and sixth. Again here first carbon, second, third, fourth, fifth, and sixth. जिस तरह आपने सेल्यूलोस में बॉन्ड बना देखा था बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे भी वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो इसका फर्स्ट एन स्टाइल ग्लूकोज अमाइन के फर्स्ट कार्बन और नेक्स्ट ग्लूकोज एन स्टाइल ग्लूकोज अमाइन के फोर्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनता है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे शो करेंगे, यहाँ पे हम एक O लिखेंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दिस इज अगेन द डाइसैकेराइड। तो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, इस ऐसी एक चेन बनेगी, एक लीनियर पॉलीसेकेराइड होता है, ये लीनियर पॉलीसेकेराइड लीनियर चेन में होता है, लीनियर होता है, अनब्रांचेड होता है। लेकिन यहाँ सेल्यूलोस में बीटा डी ग्लूकोज होता है, यहाँ पे एन स्टाइल ग्लूकोज अमाइन होता है। तो यहाँ पे हम O लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इस O को ख़त्म करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे हम N लिखेंगे। सो व्हाट दिस N इंडिकेट्स? a number of N-style glucose amines joined with each other by means of a 1,4 linkage. Again here it is the 1,4 लिंकेज। जिस तरह आपने सेल्यूलोस में देखा कि सेल्यूलोस डज नॉट ओकर सिंगली, इन द सेम वे ये जो काइटिन होता है इट आल्सो ओकर्स इन बंडल्स। एंड ये जो सेल्यूलोस काइटिन होता है, तो ये काइटिन जो होता है ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड लेदरी होता है। सो दिस काइटिन इज सॉफ्ट एंड लेदरी। अब ये सॉफ्टनेस और लेदरी होने की वजह से इट प्रोवाइड्स बोथ स्ट्रेंथ
as well as the elasticity. So it provides, due to this softness and due to this leatheriness, it provides both elasticity and strength. Thank you. See you in the next class.